Good morning everyone. Now we will discuss crystal field stabilization energy, that is CFSE. From our earlier knowledge, we know that an electron prefers to occupy lower energy orbitals. Let us now suppose that an octahedral complex has 1d electron, and naturally this electron will prefer to go to one of the T2g orbitals because T2g orbitals are lower in energy than Eg orbitals. The energy of T2g orbitals is minus dq, as we have seen in our previous lecture, that the energy of T2g orbital is minus 4 dq or minus 4 delta naught as compared to energy of hypothetically degenerate orbitals of state 2 taken as 0. If one d electron will occupy T2g orbital, then complex will be more stable than predicted by pure electrostatic theory. So the amount of stabilization that is provided by the splitting of these 2d orbitals into the amount of stabilization that is provided by the splitting of d orbitals into two levels is called crystal field stabilization energy. So what is crystal field stabilization energy? That is the stabilization that is provided by the splitting of these d orbitals into these two sets, or we can say this is CFSE. It is the amount of stabilization provided by the splitting of d orbitals into two levels, and this is called crystal field stabilization energy. Every electron in T2g orbital is stabilized and electron in Eg orbitals are destabilized. It is obvious that if there is D1 configuration or D2 configuration or D3 configuration, the electron will naturally occupy these T2g orbitals. If we talk about D4 configuration, then it depends upon the pairing energy parameter also, that whether the electron will go to T2g or Eg orbitals. This might be clear to all of you. What is crystal field stabilization energy? It is the amount of stabilization that is provided by the splitting of d orbitals into two levels. मतलब कि कितनी stabilization d orbitals के splitting होने के बाद हमें d orbitals की splitting जब दो levels के अंदर हुई तो कितनी stabilization किसी भी electron transition metal atom को मिली, तो दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. और ये भी है कि जो भी इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में जाएगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा और इलेक्ट्रॉन अगर Eg ऑर्बिटल में जाएगा वो डीस्टेबलाइज होगा. देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट फॉर एन octahedral complex, for each electron entering into Eg orbital, the crystal field stabilization energy will be what? Minus 4 dq, and for each electron entering into T2g orbital, the crystal field stabilization energy would be minus 4 dq or minus 0.4 delta naught. And for each electron entering into Eg orbital, the crystal field, here the word destabilization is used. So the crystal field destabilization energy is plus dq or plus 0.6 delta naught, and it's calculated as the algebraic sum of minus 4 dq per electron in T2g orbital and plus 6 dq or plus 0.6 delta naught per electron in Eg orbital. मैंने क्या बोला अभी कि जो इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में जाएगा वो स्टेबलाइज होगा minus 4 डेल्टा नॉट या minus 4 dq से, और जो इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल के अंदर जाएगा वो डीस्टेबलाइज होगा प्लस 6 dq या प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से. तो ये स्टेबलाइजेशन T2g में और डीस्टेबलाइजेशन Eg में. और इनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कॉम्प्लेक्स की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनका हम सम लेंगे. जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे इस पैरामीटर से, minus
0.4 डेल्टा नॉट या -4 d³ पर इलेक्ट्रॉन को इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा स्टेबलाइजेशन देगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में है तो हर एक इलेक्ट्रॉन को पर इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे +6 d³ से और हम इनका सम ले लेंगे नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यही देख रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लेंगे हम और उनकी CFSE को कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपको ये कैलकुलेशन करनी है CFSE की वो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 के लिए करनी है। और D4 के बाद जो चेंजेस आएंगे CFSE को कैलकुलेट करने के लिए वो हम D4 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम D1 कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलते हैं कि D1 कॉन्फ़िगरेशन की हम CFSE ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन अ सिस्टम विद D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी हम एग्जांपल ले लें, लेट्स से टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड 3 नेगेटिव, TiF6 3 नेगेटिव हमने यहाँ पर लिया। तो ये जो टाइटेनियम TiF6 3 नेगेटिव, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं Ti दैट इज टाइटेनियम TiF6 3 नेगेटिव। जब हम टाइटेनियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, X प्लस फ्लोरीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1। तो X, तो कितने टोटल फ्लोरीन यहाँ पर है 6, तो नेट फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी -6। तो X -6 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स कौन सा है TiF6 स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज और ऊपर -3। तो जो नेट चार्ज X का आएगा दैट इज X प्लस ब्रैकेट में -6 इक्वल्स टू -3। तो X को जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो X +3 आएगा। तो टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D1। तो इसी तरीके से अगर हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम उसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे कि कितनी है। तो इस केस में मैं कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है TiF6 3 नेगेटिव। तो TiF6 3 नेगेटिव में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन। अब D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो नेचुरली T2G ऑर्बिटल्स में जाएगा, मतलब कि 3 T2G ऑर्बिटल हैं, तीनों में से किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी T2G की एनर्जी क्या है, कम है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो हमारा T2G में गया तो इसकी नेट CFSE हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू -4 d³। क्योंकि -4 d³ क्यों किया हमने, क्योंकि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय -4 d³। तो पर इलेक्ट्रॉन को हम इस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 d³ से। तो इसकी जो नेट CFSE आएगी वो क्या आएगी, -4 d³। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट उसी तरीके से हम D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंसिडर करें, वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D2 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगी। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स and both the electrons will occupy T2G orbital with parallel spin and electronic configuration will be written as T2G bracket close and इसका subscript 2। क्लियर। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ओरिएंट विद पैरेलल स्पिन्स। पैरेलल स्पिन देखो एक ही डायरेक्शन में इनकी स्पिन है तो पैरेलल स्पिन में ये ओरिएंट होंगे और जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे लिख सकेंगे, सो यू मस्ट राइट हियर कि D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम D2 कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे वेनेडियम +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन D2 हो जाएगी। तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल ओरिएंट विद पैरेलल स्पिन
एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज ब्रैकेट T2G, फिर ब्रैकेट बंद और इसके सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे 2 एंड CFC विल बी, और इसकी CFC कैसे कैलकुलेट, वही जैसे हमने D1 की थी कि एक इलेक्ट्रॉन -4dq, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो -4dq इंटू 2 या 2 इंटू -4dq, तो जो नेट इसकी CFSC आई दैट इज -8dq। इस तरीके से हम D2 की कॉन्फ़िगरेशन की CFSC को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज D3। अगर हमें D3 को कैलकुलेट करना है, जैसे D2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो D3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। D3 का अगर हम कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लें तो हम ले रहे हैं जैसे क्रोमियम +3। अगर क्रोमियम +3 में है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम +3 की दैट इज D3। तो D3 में we have 3 electrons and these 3 electrons oriented with parallel spin, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा अगर हम D3 की बात करें, और उनकी CFC और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी T2G ब्रैकेट और इसका सुपरस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा 3। तो T2G ब्रैकेट थ्राइस सुपरस्क्रिप्ट 3 लगाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और CFC कैसे कैलकुलेट करेंगे, CFC पर इलेक्ट्रॉन की -4dq है। नाउ वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की CFC क्या हो जाएगी 3 इंटू -4dq, तो इट विल बिकम -12dq। तो इस तरीके से हम D3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमें लिखना क्या होगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन EG एंड T2G सेट में है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी that is T2G thrice, फिर हम लिखेंगे it has 3 electrons and 3 electrons arranged in parallel spin। parallel spin के बाद CFC parallel spin को हम शो करके दिखाएंगे, फिर हम CFC को बताएंगे that 3 into -4dq is equals to -8dq। इस तरीके से हम CFC with D3 के साथ कैलकुलेट करेंगे। Now D4 कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए, इसकी CFC को निकालने के लिए we have 2 possibilities। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 के 4 T2G में भी अरेंज हो सकते हैं, 3 विद पैरेलल स्पिन एंड 1 विद ऑपोजिट स्पिन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल्स के अंदर भी जा सकता है, दोनों EG में से किसी एक ऑर्बिटल में भी जा सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, यानी कि हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिलेगी, क्या हमें सेकेंड पॉसिबिलिटी मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से दैट कि अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो D4 कॉन्फ़िगरेशन का हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mn3 पॉजिटिव हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या है कि जितने भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल ऑक्यूपाई द T2G ऑर्बिटल्स विद पेयरिंग ऑफ one T2G orbital, and electronic configuration will be represented as bracket T2G bracket close superscript में 4। and second possibility is that कि one electron would goes into higher energy orbitals that is EG, एक इलेक्ट्रॉन हमारा higher energy orbital में चला गया, तो इसकी configuration क्या हो जाएगी bracket T2G 3 then EG ब्रैकेट बंद 1। क्लियर, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी T2G थ्राइस ब्रैकेट T2G ब्रैकेट क्लोज, देन ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 3, देन ब्रैकेट EG ब्रैकेट क्लोज और इसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे क्या 1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड पॉसिबिलिटी की ये हो जाएगी। नो क्वेश्चन इज कि हमें मालूम कैसे चलेगा कि 2 पॉसिबिलिटीज में आउट ऑफ दीज 2 पॉसिबिलिटीज कि इसके एक्चुअल CFSE क्या है। सो द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट एंड P। डेल्टा नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो डिफरेंस था EG और T2G में हमने इस स्लाइड में देखा था, दैट इज डेल्टा नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी P पर। P is the pairing energy. This is pairing energy क्या है, this is the energy required to cause pairing of electron in same orbital. Clear? What is pairing energy? This is the energy required to cause
pairing of electron in same orbital. This is called pairing energy. So pairing energy पे डिपेंड करेगा. कैलकुलेट हम इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में.